Hello, all my dear students. Welcome back to Prudence Coaching. In this particular channel, today we are going to learn the first chapter of the book New Maths Ahead 1. So, before starting with the chapter, we will warm up with the previous concept. Students, as you can see, it is asked that you need to put a tick on the aeroplane flying above the cloud. मतलब जो एरोप्लेन क्लाउड के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं उसको टिक करना पड़ेगा. दैट मीन्स यू नीड टू टिक द एरोप्लेन विच इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड. सो एज यू कैन सी दिस इज द क्लाउड एंड दिस पर्टिकुलर एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड. मतलब क्लाउड के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं तो इसमें हम लोगों को टिक करना पड़ेगा. फिर नंबर 2 में बोला है कि पुट अक्रॉस ऑन द एरोप्लेन फ्लाइंग बिलो द क्लाउड. सो ये क्लाउड है और इसके नीचे जो एरोप्लेन है मतलब इस एरोप्लेन को हम लोगों को क्रॉस करने को बोला है तो हम लोग यहाँ पर क्रॉस करेंगे. नेक्स्ट वी हैव 3 चिल्ड्रेन. अजीत हु इज गोइंग इन फ्रंट ऑफ फतिमा एंड आफ्टर फतिमा वी हैव माइक. सो हियर इट इज आस्क्ड हु इज बिफोर फतिमा. फतिमा के आगे कौन जा रहा है. As you can see, before Fatima we have Ajit. So here our answer will be Ajit. So Ajit is before Fatima. Next, who is after Fatima? Fatima के पीछे कौन है. As you can see, we have Mike who is following Fatima. So here we will get our answer as Mike. क्योंकि Mike Fatima के पीछे है. So now let's start with the next page. Put a tick on the tree that is near. मतलब आपके निकट में जो पेड़ है उसमें टिक करने को बोला है. As you can see, this tree is near to you. तो इसमें टिक करना पड़ेगा. Put a cross on the tree that is far. जो पेड़ आपसे दूर है उसमें क्रॉस लगाने को बोला है. So as you can see, this tree is far away, so you need to cross this particular tree. Next, put a tick on the dog inside. As you can see, a dog उसके जो घर है उसके भीतर है तो उसमें टिक लगाने को बोला है. Put a cross on the dog outside. जो dog बाहर है, the dog which is outside, you need to cross that particular dog. Next, put a tick on the cat on the table. So as you can see, this is the table. एक टेबल है और इसके ऊपर on this particular table we have a cat. इसके ऊपर एक cat है. So इस cat को हम लोगों को टिक करने को बोला है. Put a cross on the cat under the table. So टेबल के नीचे जो cat है उसमें क्रॉस लगाने को बोला है. So we need to cross the cat which is below or under the table. Next one, put a tick on the book at the top. जो book एकदम ऊपर है उसमें टिक लगाने को बोला है. As you can see, this book is at the top. एकदम ऊपर है तो इसमें टिक लगाने को बोला है. Put a cross on the book at the bottom. So जो book एकदम नीचे है, as you can see, the yellow color book is at the bottom, so you need to cross the yellow color book. तो जो बुक नीचे है उसमें आपको क्रॉस लगाने को बोला है. Now let's start with the next one, that is matching. Is there an ice cream for each child? तो यहाँ पर आस्क किया हुआ है कि जितना नंबर ऑफ चिल्ड्रन है उतना नंबर ऑफ आइसक्रीम है कि नहीं. मैच बाय ड्राइंग लाइन्स. तो यहाँ पर आप लोगों को लाइन्स ड्रॉ कर करके देखना है कि जितना नंबर ऑफ चिल्ड्रन है उतना आइसक्रीम यहाँ पर दिया हुआ कि नहीं. इफ़ इट इज़ येस, अगर हाँ होगा तो येस करना पड़ेगा, अगर ना होगा तो नो करना पड़ेगा. सो लेट्स चेक. तो एक एक आइसक्रीम एक एक चाइल्ड को दे देते हैं. लेट्स गिव 1 आइसक्रीम टू ईच वन. सो लेट दिस आइसक्रीम बी गिवन टू दिस गर्ल, दिस वन टू दिस बॉय, दिस वन टू दिस गर्ल, दिस वन टू दिस बॉय एंड दिस वन टू दिस गर्ल.
As you can see, all the children are getting one ice cream each, and there is no child who is not getting any ice cream or there is no extra ice cream. यहाँ पर कोई भी चाइल्ड नहीं है जिसको आइसक्रीम नहीं मिला है और एक भी आइसक्रीम ज़्यादा नहीं है। इसके मतलब यहाँ पर जितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन है उतना ही नंबर ऑफ आइसक्रीम है, तो यहाँ पर येस होगा। Now let us move on to the next one. Is there a flower for each butterfly? You asked here whether the number of butterflies and the number of flowers are same or not. मतलब एक एक बटरफ्लाई को एक एक फ्लावर मिल रही है कि नहीं। So let us check. So let us give one flowers to each butterfly. So this flower is given to this butterfly, this one to this one, this one to this one is given to this, and this one is given to this. As you can see, one butterfly is extra which is not getting any flower. तो आप देख सकते हैं कि इस बटरफ्लाई को कोई भी फ्लावर नहीं मिला है, मतलब यहाँ पर हमारे आंसर नो होगा। As you can see, this butterfly is not getting any flower, so your answer will be no here. Now let us move on to the next page. Which has more? Put a tick on the set which has more. So let us check. Here we have 1, 2, 3, 4. So here we have 4. Here we have 1, 2, 3. That means here we have 3. So we know 4 is more than 3. So you need to tick over here, as you need to tick the group which is more. यहाँ पर जिस ग्रुप में ज़्यादा है उसमें टिक लगाने को बोला है। नंबर 1A में as you can see यहाँ पर 4 चिल्ड्रन है और इधर 3 ही बॉल है, मतलब 4 ज़्यादा है 3 से, सो 4 में टिक लगाना पड़ेगा। लेट अस सी द नेक्स्ट वन, नंबर बी। हियर की दिया हुआ है 1, 2, 3, 4. सो हियर 4 कीज आर देयर। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 6 इज ग्रेटर देन 4। 6 ज़्यादा है 4 से, तो हम लोगों को यहाँ पर टिक लगाना है। We need to tick over here as 6 is more than 4. Next we have 1, 2, 3, 4, 5. इस ग्रुप में और इस सेट में 5 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पर 6 आइसक्रीम्स है। As you can see, 6 is greater than 5. So हम लोगों को यहाँ पर टिक लगाना है। Now let us move on to number 2. Put cross on the set which has less. जिस भी सेट में कम नंबर ऑफ चीज़ें हैं उसमें हम लोगों को क्रॉस लगाने को बोला है। We need to cross the set which is less in number. So 1, 2, 3, 4, 5. 5 fish are there. Here we have 1, 2, 3, 4. 4 cranes. So as you can see, 5 is more than 4. That means A कम है, तो इसमें क्रॉस लगाना है। नेक्स्ट वन 1, 2, 3, 4, 5. तो हम लोगों को यहाँ 5 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर 3 ही हैट है, तो 5 ज़्यादा है 3 से। हम लोगों को यहाँ पर बोला गया है जिसमें कम है उसमें क्रॉस लगाना है, तो इसमें हम लोग क्रॉस लगाएंगे। नंबर सी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. यहाँ पर 7 ब्रश है और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पेंसिल्स है। मतलब 9 ज़्यादा है 7 से, हम लोगों को जिसमें कम है उसमें क्रॉस लगाने को बोला है, मतलब इसमें हम लोगों को क्रॉस लगाना है। Now let us move on to the next page. Numbers from 1 to 9. हम लोग इस सेट में 1 से 9 तक नंबर सीखेंगे। 1 मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ही कैट है, तो A 1 है।
हम 1 ऐसे दिखाते हैं, वी शो 1 लाइक दिस, राइट 1। तो यहाँ पर हम लोगों को 1 लिखना है। सो यहाँ पर 1 ऐसे लिखना है हम लोगों को, और 1 यहाँ पर हम लोगों को वर्ड में लिखना है। वी नीड टू राइट 1 हियर इन वर्ड, सो यू नीड टू राइट हियर ONE 1। नेक्स्ट वी विल लर्न 2। 2 मतलब 2, 1 2। सो वी नीड टू राइट हियर 2, सो राइट हियर 2 लाइक दिस। सो यहाँ पर 2 ही बर्ड्स है, सो 2 को हम ऐसे दिखाते हैं, वी शो 2 लाइक दिस। एंड यहाँ पर हम लोगों को 2 लिखना है। पहले इसमें पेंसिल से लिखना है इसके ऊपर, और उसके बाद यहाँ पर TWO 2 ऐसे लिखना है। As you can see here we have 3 kites, 1 2 3, मतलब 3 ही kites है यहाँ पर। 3 हम लोग ऐसे दिखाते हैं। We need to write here 3, so let us write here 3, और यहाँ पर 3 वर्ड्स में लिखना है, सो THRW 3 है। तो ऐसे अब लोग कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर 4 बोर्ड्स है, 1 2 3 4। सो यहाँ पर 4 ऐसे लिखना है, और इसमें FOUR 4 ऐसे लिखना है, और 4 हम ऐसे दिखाते हैं 4 उंगलियों से। नेक्स्ट वी हैव 5, 1 2 3 4 5। सो यहाँ पर 5 लिखेंगे क्योंकि यहाँ 5 डक्स है, और 5 हम लोग ऐसे दिखाते हैं। हम लोगों को ऐसे 5 यहाँ पर वर्ड में लिखना है, सो राइट 5 लाइक दिस। नेक्स्ट वी हैव 1 2 3 4 5 6 बटरफ्लाइज। सो यहाँ पर 6 लिखना है हम लोगों को, और 6 हम एक हाथ से 5 दिखाते हैं और एक हाथ से 1 दिखाते हैं। सो वी शो 6 लाइक दिस। So write here 6 by writing spelling of 6 SIX. We have 7 mice, 1 2 3 4 5 6 7। माउस का प्लूरल माइस होता है, एक से अधिक माउस होगा तो माइस कहते हैं। So we will write 7 here like this, and यहाँ पर स्पेलिंग करके ACVEN लिखना है। 7 हम लोग ऐसे दिखाते हैं, एक हाथ से 5 और इस हाथ में 2 उंगलियों से दिखाते हैं 7। नेक्स्ट वी हैव 8 फ्लावर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8 फ्लावर्स हम लोगों को यहाँ पर 8 ऐसे लिखना है, सो 8 ऐसे लिखे। नेक्स्ट वी हैव EIGHT। Next we have 9 bananas. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bananas। 9 हम लोगों को ऐसे लिखकर फिर ऐसे 9 लिखना है। So write 9 like this, और यहाँ पर 9 स्पेलिंग करके लिखना है। Next we will learn 0. What is 0? 2 children on the swing. So ये एक दोलना है, स्विंग है, इसमें 1 और 2 बच्चे बैठे हैं। गुरदीप गोज होम, यहाँ से इसका नाम गुरदीप है, एक घर जा रहा है, ही इज गोइंग होम। हाउ मेनी लेफ्ट? सो कितना चला गया? 1। गुरदीप 1 चला गया। नेक्स्ट सामा ऑल्सो गोज अवे। सो गुरदीप चला गया, फिर ये सामा ये भी चला जा रहा है। नाउ देयर आर नो चिल्ड्रेन, एज यू कैन सी यहाँ पर कोई भी नहीं है, मतलब देयर आर 0 चिल्ड्रेन ऑन द स्विंग। कोई भी नहीं होना का मतलब है 0। नो वन इज देयर, दैट मीन्स 0। 0 का ऐसे लिखना है हम लोगों को, ऐसे 0 लिखना है। सो ऐसे हम लोग यहाँ पर 0 लिखेंगे। 0 का स्पेलिंग हम लोग ZERO ऐसे लिखेंगे। फिर हम 10 सीखेंगे। 10 फ्लावर्स,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So 10 flowers are there. There are 9 birds on the tree. इस पेड़ में 9 पक्षी है. One more flies in, मतलब एक और आ जाते हैं. Now there are 10 birds. यहाँ पर अब 9 plus 1 10 birds हो जाते हैं. So 9 plus 1 more, that is 9 and 1 more make 10. So 9 में एक ऐड करने से हम लोगों को 10 मिलता है. So एक हाथ से 5 उंगलियों और एक हाथ से 5 fingers. So total 10. So we saw 10 like this. So now let's start with exercise 1. Look at the picture and count. तो आपको ये पिक्चर देखकर आंसर देना है. How many pencil? So ये पेंसिल है. इसमें कितने पेंसिल है? 1 2 3 4 5 6 7. That means we are going to write here 7. Next we have toffee. So let us count how many toffees are there. Only one toffee. So we write here 1. Next we have flowers. We have 1 2 flowers. So here we will write here 2. हम लोगों को यहाँ पर 2 लिखना है. How many candles? अब candles count करते हैं. 1 2 3 4 5. So 5 candles are there. Next we have how many parrots? 1 2 3 4 5 6. तो यहाँ पर 6 लिखना है. How many mangoes? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So 9 mangoes are there. How many apples? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So 10 apples है. यहाँ पर अब देख सकते हैं कि यहाँ पर 9 हो रहा है. 9 मैंगोस, मतलब यहाँ पर भी 9 एप्पल्स होंगे और एक एप्पल्स ज़्यादा है, मतलब 9 + 1 10. आप ऐसे भी देख सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव स्वान. लेट अस चेक 1 2 3 4 5 6 7 8. सो यहाँ पर 8 swans है. How many mice? 1 2 3 4. So we have 4 mice here. How many balloons? 1 2 3. तो यहाँ पर 3 ही balloons है. So we have completed with this one. Let us move on to the next exercise. Now in the next page we have the concept of before, after, between. Before मतलब आगे, after मतलब उसके बाद, between मतलब दोनों के बीच में. If we take an example, अगर ये आप हो और ये आपकी मम्मी है और ये आपके पिताजी है, तो आप इन दोनों के बीच में हो. That means you are between your father and mother. So you are between. आपके आगे कौन है? मतलब who is after you? Who is after you? Your mother is after you. आपके पहले कौन है? आपके पिताजी. So your father is before you. आपके बाद में आपकी मम्मी जी है और आपके पीछे कौन है? आपके पापा. So your father is before you and your mother is after you, and you are between your mother and father. So with this concept you are going to solve this. So let's start. The number after 2. 2 के बाद कौन सी नंबर आते हैं? After 2 we have 3. So यहाँ पर 3 लिखना है. The number after 3. 3 के बाद कौन सी नंबर आते हैं? 4. So you need to write here 4. The number after 6 is 6 के बाद 6 7. So यहाँ पर 7 लिखना है. The number after 1 is 2. तो यहाँ पर 2 लिखना है. The number after 4. 4 के बाद कौन आता है? 5. तो यहाँ पर 5 लिखेंगे. The number after 9 is 10. So the number after 9 यहाँ पर 10 लिखना है. The number after 8. 8 के बाद कौन है? 9.
तो यहाँ पर 9 लिखेंगे। द नंबर आफ्टर 7, 7 के बाद कौन है 8, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन, द नंबर बिफोर 7 इज, मतलब 7 के आगे कौन सी नंबर है। सो बिफोर 7 वी हैव 6, सो यहाँ पर 6 लिखेंगे। द नंबर बिफोर 9 इज, 9 के आगे कौन है, सो 9 के आगे 8 है, हम लोग यहाँ पर 8 लिखेंगे। द नंबर बिफोर 5, 5 के आगे which number is before 5, 4 is there, so you will write here 4. Which number is before 4, before 4 we have 3, 4 के आगे 3 है, so यहाँ पर 3 लिखेंगे। Which number is before 3, 3 के आगे कौन है 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। Which number is before 2, 2 के आगे कौन है 1 है, so you will write here 1 as 1 is before 2. Next, which number is before 6, 6 के आगे कौन है 5 है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। The number before 1, 1 के आगे कौन है 0 है, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। तो ऐसे आप लोगों को 1 और 2 फिलअप करना है। Fill in the box as shown. As you can see, 1 is done for you. एक किया हुआ है, आपको ऐसे फिल करना है। सो 4 दिया हुआ है, 4 के आगे कौन होगा 3, ऐसे ही यहाँ पर 8 दिया हुआ है, मतलब 8 के आगे कौन होगा 7 होगा। यहाँ पर 10 दिया हुआ है, 10 के आगे कौन होगा 9 होगा। 7 के आगे कौन सी नंबर होगा 7 - 1 मतलब 6, 6 7। 5 के आगे कौन होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मतलब 4, फिर 5, सो यहाँ पर 4 होगा। यहाँ पर आपको आफ्टर लिखना है, मतलब 6 के बाद कौन सी नंबर होगी 6 7, सो यहाँ पर 7। 3 के बाद 3 4, सो यहाँ पर 4। 9 के बाद 9, फिर 10, सो यहाँ पर 10 लिखेंगे। 5 के बाद कौन सी नंबर होगी 6, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। 8 के बाद after 8 you will get here 8 + 1 that is 9, so you will get here 9, तो आपको 9 लिखना है यहाँ पर। अब इसके बाद क्या है, बिटवीन वाला नंबर दिया हुआ है, आपको लिखना है। 0 है, यहाँ पर 2 है, सो 0 1 2, so in between 0 and 2 what will come, 1 will come. Next one you have here 4, after 4 what will come 5, and after 5 6, so 4 5 6, or you can see like this, before 6 you will get here 5 and after 4 you will get here 5, so in between 4 and 6 you will get 5, मतलब 6 और 4 के बीच में 5 आएगा। so 7, after 7 we have 8 और a 9 है, 8 फिर 9 और a 10 है, so बीच के नंबर आपको बिटवीन में लिखना है। As you can see again we have, you need to write here between, so after 3 what is there 4, so 3 4 5 मतलब 3 और 5 के बीच में 4 आते हैं। 2 3 4 7 8 9 5 6 7 6 7 8, सो आपको यहाँ पर बीच के नंबर लिखने हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज बिगर एंड स्मॉलर। सो यहाँ पर हम लोग बड़ा और छोटे में फ़र्क समझेंगे। काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ बलून्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ए लता है और लते के पास कितने बलून्स हैं, हाउ मेनी बलून्स आर देयर विथ लता, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब लता हैज़ 7 बलून्स, 7 बलून्स है लता के पास। यहाँ पर करीम को देख लेते हैं, एक करीम है, करीम हैज़ मतलब करीम के पास है कितने बलून्स है, 1 2 3 4 5, मतलब करीम हैज़ 5 बलून्स। अब लोग देख सकते हैं किसके पास ज़्यादा है, इसके पास 7 है
और इसके पास 5 ही बलून्स है। 7 ज़्यादा है 5 से। 5, 6, 7 मतलब 5 के बाद 7 आते हैं, मतलब 7 क्या है, ज़्यादा है 5 से। सो हु हैज़ मोर बलून्स? मोर बलून्स इज़ विथ लता। सो लता हैज़ मोर बलून्स, मतलब क्योंकि यहाँ पर 7 बिगर है 5 से, सो 7 इज़ ग्रेटर दैन 5, सो वी विल से दैट लता हैज़ मोर बलून्स, and here you know 5 is smaller than 7 because 5 comes before 7 na. 5, 6, 7, so 5 is smaller and 7 is bigger. Next we have exercise number 3. Count and write the number in each box. So आपको ये बॉक्स में कितना चीज़ है आपको काउंट करके लिखना है. Then fill greater than or less than in the circle. So let's start. यहाँ पर we have 1, 2, 3, 4, 5 caps है. So you will write here 5 birthday caps are there. On the other side we have 1, 2, 3, 4. So we have 4 here. So कौन सा नंबर बड़ा है, 4 या फिर 5? As you can see, after 4 5 comes, मतलब 5 is greater than 4. So जिस तरफ ज़्यादा होगा उस तरफ ये हाँ वाला चीज़ रहेंगे. So 5 is greater than 4, ऐसे लिखते हैं greater than. As 5 is bigger, so 5 के तरफ ये greater than का साइन होगा. Next one, यहाँ पर birds है. Let us count the birds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9 birds है. यहाँ पर हम लोग 9 लिखेंगे और देखते हैं इस तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 आइसक्रीम्स है तो यहाँ पर 7 लिखेंगे. As you can see, 7, 8, 9 मतलब 9 comes after 7. So 9 is greater than 7. So 9 के तरफ एक greater than साइन होगा. अगर इस क्वेश्चन में 7 इस तरफ होता और 9 इस तरफ होते तो greater than इस तरफ घूम जाते, मतलब जिस तरफ ज़्यादा होगा उस तरफ ये हाँ वाला चीज़ होगा. Let's start with sum number 2. Use this picture to help you fill the correct sign either greater than or less than in each box. आपको ये पिक्चर देखकर ये सम सॉल्व करनी है. आपको ग्रेटर दैन और लेस दैन की साइन यूज़ करनी है. आप देख सकते हैं कि ये चाइल्ड ऊपर के तरफ जा रहा है, मतलब जितना ऊपर ये नंबर होगा उतना ही बड़ा होगा. 10 से ये सारे नंबर छोटे होंगे. वैसे ही 5 से 6 ज़्यादा होगी. 7 भी 5 से ऊपर है, मतलब 7 will be greater than 5. Similarly 8 will be greater than 5. मतलब ऊपर के नंबर नीचे जो नंबर है उससे बड़ा होगा. सो यहाँ पर 4 और 7 है. 4 यहाँ पर है और 7 यहाँ पर है. अब देख सकते हैं कि 7 ऊपर है 4 से, मतलब 7 बड़ा होगा. सो 7 के तरफ एक ग्रेटर दैन साइन हमको लिखना है, तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे. तो जो भी नंबर बड़ा होगा आपको ग्रेटर दैन उसके तरफ लिखना है. नेक्स्ट वन वी हैव हियर 6 एंड 5. 5 नीचे है और 6 ऊपर है, मतलब 6 बड़ा है 5 से, सो 6 के तरफ एक ग्रेटर दैन साइन होगा. नेक्स्ट वी हैव 9 एंड 4. 9 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है, मतलब 9 ऊपर है 4 से, तो यहाँ पर 9 के तरफ ग्रेटर दैन साइन होगा. नेक्स्ट वी हैव 10 एंड 9. यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 10 है. 10 ऊपर है 9 से, तो यहाँ पर ग्रेटर दैन होगा. सो ऐसे आपको सारे सम सॉल्व करना है. So you can see like this you need to solve each blank space. So let us move on to the next one. Number 3. Ring as given. Ring all the numbers bigger than 2.
सो जो भी नंबर 2 से अधिक है आपको रिंग करना है, मतलब सर्किल करना है। 1 2 फिर 3 आता है, मतलब 3 बड़ा होगा। 3 के बाद 4 आता है, सो 4 भी बड़ा होगा 2 से। 4 5 6 नहीं है, फिर 7 है, 7 इज़ ऑल्सो ग्रेटर दैन 2। 7 के बाद 8 है, 8 इज ऑल्सो ग्रेटर दैन 2। फिर 9 है, 9 इज़ ऑल्सो ग्रेटर दैन 2। यहाँ पर रिंग ऑल द नंबर स्मॉलर दैन 7, मतलब 7 के आगे जो भी नंबर है वो 7 से छोटा होगा। सो 1 छोटा है, 2 छोटा है, 3 छोटा है, वो नहीं है, 4 भी छोटा है, 5 भी छोटा है, 6 भी छोटा है, फिर 7 आ जाते हैं, तो ये नंबर 7 से छोटा है। नेक्स्ट वी हैव रिंग ऑल द नंबर्स बिगर दैन 8। 8 से ज़्यादा जो बड़ा नंबर है उसको हम लोगों को रिंग करना है। 8 के बाद 9 आते हैं, सो यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 10 भी है। सो 9 and 10 are greater than 8. Next we need to ring the number smaller than 5. 5 से छोटे नंबरों को आपको सर्किल करना है। 5 के छोटे 0 है, 0 के बाद 1 है, 2 है, 2 यहाँ पर नहीं है, 2 के बाद 3 है, फिर 4 है, फिर तो 5 आ जाते हैं। तो 5 से छोटे 1 3 और 4 यहाँ पर दिया हुआ है। So my dear students, as you can see, next we have 11 to 20 which we will learn in the next class. Till then, you just watch this video once again. Go through each and every sum and get prepared for the next class. We will be coming up with the next class soon. तो अब लोगों को आज घर में जाके और घर में एक प्रैक्टिस करना है दोबारा से इस वीडियो को देखकर, और कल हम लोगों का नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम 11 से 20 तक जो है वो पढ़ेंगे। So all my dear students, take care of yourself, stay safe, see you in the next class, and don't forget to like, share, subscribe this channel if you find the video helpful. Bye bye students, have a nice day.